Okay, class. Now we will discuss a worksheet of the same question. We had started illustration number 5, and in that we had worked on adjusting entries and we prepared income statement and balance sheet. Now we are going to work on a worksheet which is basically 10 columns worksheet as per the requirement of our question. So first of all, we have to mention the items which were given to us in the trial balance of question, and then we have to mention those items that were not given in trial balance but that were the part of our adjusting entries. So we have to work on all that. So items के बाद we have to prepare the column of trial balance. After that we will prepare column of adjustments. After that we have to create adjusted trial balance. Then we will prepare column of income statement, and then in the last we have balance sheet column. So these are 5 major columns, which means that this is a 10 column worksheet, and we have to write a proper format. You can also write the name of organization on the top. You can write Western Corporation. After that you can write worksheet, and for the year ended on 31st March. So in items column you have to mention the items which were given to you in trial balance of the question. So we have written cash, accounts receivable, opening inventory, supplies expense, prepaid insurance, equipments, and accumulated depreciation, accounts payable, capital, sales returns, purchases returns, salaries expense, rent expense, advertisement, and delivery expense. All these items have been taken from trial balance, and all these items were available there. We have just picked these items from trial balance and we have inserted these items here in the worksheet, and amounts were also given to us, and these amounts have been taken from the trial balance of the question. वो आइटम्स जो कि डेबिट साइड पे फॉल करते थे उनके अमाउंट्स हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर ली हैं, और वो आइटम्स जो कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे मेंशन थे उनकी अमाउंट्स हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मेंशन कर ली हैं. एंड व्हेन वी टोटल दिस बोथ साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, वी गेट 19020. सो दिस वाज बेसिकली द ट्रायल बैलेंस जो कि एक्चुअली हमने क्वेश्चन की हेल्प से जनरेट की है. नाउ वी हैव टू मूव डाउनवर्ड इन दिस वर्कशीट. एज यू कैन सी, ending inventory, then we have expense and revenue summary account, which is basically CGS account, then we have insurance expenses, then we have depreciation expenses, and we have salaries payable account, and then we have net income. ये जो items हैं ये basically हमने जो adjusting entries पास की हैं ये हमने वहाँ से लिए हैं. ये items हमारे पास trial balance में given नहीं थे, बल्कि ये वो items हैं जो कि adjusting entries की वजह से create हुए हैं. That's why हमने ये items यहाँ पे end में mention कर दिए हैं after writing down the items of trial balance. जब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स आप राइट डाउन कर लेंगे उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्रीज़ के आइटम मेंशन करने होंगे. आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास की थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मींस एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं थी, इस वजह से हमने वर्कशीट में एंड में मेंशन कर ली है. इसके अलावा CGS अकाउंट, ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं था, इस वजह से हमने ट्रायल बैलेंस के एंड में इसको अलग से मेंशन कर लिया है. देन इंश्योरेंस एक्सपेंस भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में नहीं है. प्रीपेड इंश्योरेंस है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है वर्कशीट में. देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इस वजह से हमने अलग से मेंशन कर लिया है. फिर हमारे पास सैलरीज पेबल का अकाउंट नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इस वजह से हमने इसको भी मेंशन किया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सैलरीज पेबल भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है. इंश्योरेंस एक्सपेंस, CGS अकाउंट एंड एंडिंग इन्वेंट्री, ये आइटम्स हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं थे, जस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज में इन्वॉल्व थे. दैट्स वाई हमने इनको यहाँ पे एंड में मेंशन कर लिया है. अब जब बात आती है एडजस्टिंग एंट्रीज़ की, तो अब हमने डबल साइडेड इफेक्ट को देखना होगा. आप वर्कशीट में देख सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री अकाउंट जो है आपके पास डेबिट है और CGS अकाउंट आपके पास क्रेडिट है. यही काम हमने वर्कशीट में करना है. जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें एडजस्टमेंट्स के कॉलम में एंडिंग इन्वेंट्री को आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना है, क्योंकि जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास की हैं तो वहाँ पे भी एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड पे ही मेंशन हुई है. इस वजह से एडजस्टिंग एंट्री में
कि जो आपके पास एडजस्टमेंट्स का कॉलम है इसमें आपने एंडिंग इन्वेंट्री को डेबिट साइड पे मेंशन करना है। इसके अलावा ये जो CGS अकाउंट है या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट है इसको आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है एडजस्टमेंट्स के कॉलम में, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने पास की थी वहाँ पे भी CGS आपके पास क्रेडिट साइड पे मेंशन है। फिर हम सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट साइड पे मेंशन करना है और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है और अमाउंट है हमारे पास 110 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से आइटम, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने मेंशन करना था डेबिट साइड पे, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया एडजस्टमेंट्स में। और प्रीपेड इंश्योरेंस अब हमने देखना है कि कहाँ पे है। प्रीपेड इंश्योरेंस बेसिकली यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी गिवन थी, इस वजह से हमने प्रीपेड इंश्योरेंस नीचे दोबारा से नहीं लिखा। इस वजह से प्रीपेड इंश्योरेंस के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में क्रेडिट साइड पे 110 रुपीज़ लिख देना है। ये अमाउंट हमने एडजस्टिंग एंट्रीज से उठाई है। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। थर्ड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है वर्कशीट में। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास यहाँ लास्ट में गिवन है वर्कशीट में, आप देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने मेंशन करना था एडजस्टमेंट्स में डेबिट साइड पे, जो कि हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन किया हुआ है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि ट्रायल बैलेंस में भी गिवन था, इस वजह से हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोबारा नहीं लिखा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स में क्रेडिट साइड पे था, इस वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट्स का कॉलम है। एडजस्टमेंट्स का कॉलम है तो एडजस्टमेंट्स के कॉलम में भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो एडजस्टिंग एंट्री है दैट इज़ सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करना है 70 रुपीज़ से, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज या सैलरीज पेबल जो है क्रेडिट है 70 रुपीज़। तो वर्कशीट में अब हम देखेंगे सैलरीज एक्सपेंस यहाँ ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सैलरीज एक्सपेंस को हमने 70 रुपीज़ से डेबिट करना था, तो हमने इसको डेबिट के कॉलम में लिखा है एडजस्टमेंट्स में। और जो सैलरीज पेबल है ये बिल्कुल लास्ट, आप देख सकते हैं लास्ट आइटम जो है सैलरीज पेबल का, इसे आपने क्रेडिट करना था एडजस्टमेंट्स में, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर लिया। तो ये हमारी ओवरऑल एडजस्टमेंट्स थी। ओवरऑल एडजस्टमेंट का कॉलम था जो कि हमने जनरेट कर लिया है। एज यू कैन सी दिस इज़ आवर एडजस्टमेंट कॉलम, और डेबिट और क्रेडिट साइड पे जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आती थी वो हमने मेंशन कर लिए हैं। एंड वी हैव टोटल इट, सो वी विल गेट 2350 अमाउंट। सो बोथ साइड्स आर बैलेंस्ड। तो हमारी एडजस्टमेंट्स भी बैलेंस हो चुकी हैं। अब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स को देखते हुए ही हमने थर्ड कॉलम क्रिएट करना है विच इज़ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम स्टार्ट करते हैं कैश से। कैश ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे गिवन है और कोई इसमें काम नहीं हुआ, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी ये आपने डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। देन अकाउंट रिसीवेबल भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे है और इसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ, दैट्स वाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है डेबिट साइड पे। देन सैलरीज ओपनिंग इन्वेंट्री है 2270, इसमें भी कुछ काम नहीं हुआ इसके बाद, इस वजह से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वी विल मेंशन इट on debit side in adjusted trial balance column. Then after that we have a salaries expense. Salaries expense आपके पास यहाँ supplies expense है आपके पास 80 रुपीज़ डेबिट साइड पे, और उसके बाद यहाँ पे भी कोई वर्किंग नहीं हुई, दैट्स वाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने 80 रुपीज़ एज इट इज़ डेबिट साइड पे लिख लिए। उसके बाद आती है बारी प्रीपेड इंश्योरेंस की। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड पे है ऑलरेडी 240 रुपीज़, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट्स में है 110 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे। सो जब एक अमाउंट है डेबिट साइड पे, दूसरी अमाउंट है क्रेडिट साइड पे, सो वी विल डू सब्ट्रैक्शन। 240 माइनस 110 वुड गिव यू 130 रुपीज़, लेकिन आपने कौन सी साइड पे लिखने हैं, डेबिट साइड पे लिखने हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड वाली वैल्यू ग्रेटर है। 240 इज़ ग्रेटर देन 110 और 240 डेबिट साइड पे है, इस वजह से हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी डेबिट साइड पे होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। आफ्टर दैट वी हैव इक्विपमेंट 750 रुपीज़, इसमें भी कुछ वर्किंग नहीं हुई, सो 750 रुपीज़ वुड बी रिटन एज इट इज़ इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट साइड।
देन वी हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे गिवन है 250 रुपीज़, और एडजस्टमेंट्स में भी ये आपके पास क्रेडिट में अमाउंट थी 100 रुपीज़। सो क्रेडिट और क्रेडिट को हमने ऐड करना होता है। सो 250 प्लस 100 वुड गिव यू 350, एंड मेंशन कहाँ पे करना है, क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है इन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आफ्टर दैट वी हैव अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में भी कोई काम नहीं हुआ, क्रेडिट साइड पे है 1400, दैट्स वाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है 1400। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल में भी कोई वर्किंग नहीं हुई, दैट्स वाई एज इट इज़ आपने मेंशन कर लिया 2870। देन वी हैव सेल्स 14200, इस पर भी कोई वर्किंग नहीं हुई, सो एज इट इज़ वी हैव रिटन इट 14200 रुपीज़। देन वी हैव सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स वर 400 रुपीज़, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ, दैट्स वाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने ये एज इट इज़ मेंशन करना है डेबिट साइड पे। देन वी हैव परचेजेस 9400, एंड एज इट इज़ लिख लिए 9400। देन वी हैव परचेज रिटर्न्स 300 ऑन क्रेडिट साइड, दैट्स वाई एडजस्टेड में भी लिख लिया हमने 300 ऑन क्रेडिट साइड। देन वी हैव सैलरीज एक्सपेंस 1500 डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में, और 70 रुपीज़ एडजस्टमेंट्स में है डेबिट साइड पे। सो डेबिट एंड डेबिट विल बी एडेड अप एंड इट विल गिव अस 1570, और हमने इसको कहाँ मेंशन करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे ही मेंशन करना है। देन वी हैव रेंट एक्सपेंस 480 रुपीज़, इस पे कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से एज इट इज़ 480 रुपीज़ हमने लिख लिया। देन वी हैव रेंट एक्सपेंस देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट 130 रुपीज़, 130 रुपीज़ को भी हमने एज इट इज़ लिख लिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। देन वी हैव डिलीवरी एक्सपेंस 840 रुपीज़, इसको भी हमने 840 एज इट इज़ लिख लिया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स एडजस्टमेंट्स, जो लास्ट में हमने एडजस्टमेंट्स की हुई हैं। एंडिंग इन्वेंट्री है एडजस्टमेंट में 2050, इसलिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने एज इट इज़ लिख लिया 2050। देन वी हैव CGS ऑन क्रेडिट साइड 2050, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड पे आपने लिख लिया 2050। देन वी हैव इंश्योरेंस एक्सपेंस 110 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड, दैट्स वाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने 110 रुपीज़ लिखना है ऑन डेबिट साइड। देन वी हैव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड, इसलिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी आपने लिखना है 100 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड। Then we have salaries payable on credit side, that's why adjusted trial balance में भी आपने इसको लिखना है on credit side, और debit and credit दोनों sides को आपने calculate करना है, which gives you 21,240 rupees। दोनों sides आपकी equal होने चाहिए, which tells you about the accuracy of your adjusted trial balance। जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास दैट इज़ ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स हैं, जो डेबिट साइड वाले आइटम्स थे ट्रायल बैलेंस के, वो आपने डेबिट साइड पे मेंशन करने हैं, और जो क्रेडिट साइड वाले आइटम्स थे उनको आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। इस केस में आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प भी ले सकते हैं, उन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना होगा। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। कैश हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आइटम नहीं है, इसलिए हमने स्किप कर दिया। देन अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आइटम नहीं है, इसको भी हमने स्किप किया है। देन वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हम इनकम स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं, बट इट्स अ डेबिट आइटम, तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिख लिया। देन वी हैव सप्लाईज एक्सपेंसेस। सप्लाईज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो अ डेबिट आइटम, इसलिए हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लिया। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, दैट्स वाई वी हैव स्किप्ड इट। Then equipment is also a balance sheet item, that's why I skipped it। Accumulated depreciation भी skip कर दिया, accounts payable भी skip कर दिया, capital भी skip कर दिया। Then we have sales 14,200, credit side पे हमने mention कर लिया income statement में, because sales हमारे पास income statement item है। Then sales returns 400, debit item है, इस वजह से यहाँ पे भी हमने इसको debit side पे लिख लिया। Then we have purchases of 9,400, डेबिट साइड पे है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड पे लिख लिया। देन परचेज रिटर्न्स हैं हमारे पास 300 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे, इसलिए यहाँ इनकम स्टेटमेंट में भी हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर लिया। देन वी हैव सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एंड डिलीवरी एक्सपेंस, दीज 4 आर डेबिट आइटम्स, इसलिए इनकम स्टेटमेंट में भी इन चारों को हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर लिया। देन वी हैव एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री बेसिकली आपके पास वहाँ पे मेंशन होता है बैलेंस शीट में, दैट्स व्हाई वी हैव स्किप्ड इट। देन वी हैव CGS। CGS है आपके पास यहाँ पे
क्रेडिट साइड पे, सॉरी CGS है आपके पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं। CGS को इनकम स्टेटमेंट में आपने मेंशन करना होगा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे मेंशन करना होगा, बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में भी वो है क्रेडिट साइड पे ही मेंशन है, दैट्स वाई यहाँ पे भी आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर लिया। अच्छा, देन वी हैव इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है आपके पास 110 रुपीज़ है आपके पास डेबिट साइड पे, इसलिए इनकम स्टेटमेंट में भी आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना है। देन यू हैव डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 रुपीज़ डेबिट साइड पे, इसलिए आपने यहाँ पे भी इनकम स्टेटमेंट में भी डेबिट साइड पे मेंशन करना होगा। अच्छा, सैलरीज पेबल आपके पास इट्स नॉट इनकम स्टेटमेंट आइटम, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में देखेंगे। अब आपने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को ऐड अप करना है, डेबिट साइड की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ को सेपरेटली ऐड करेंगे। दोनों वैल्यूज़ को आपने सेपरेटली ऐड अप करना है। दोनों वैल्यूज़ की, दोनों जो आपके पास कॉलम्स हैं डेबिट और क्रेडिट साइड, दोनों की जो वैल्यूज़ आती हैं उनमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपका नेट इनकम कंसिडर होगा, विच इज़ 1170 रुपीज़। और जिस साइड की वैल्यूज़ को ऐडअप करने के बाद आंसर कम आ रहा हो, आपने नेट इनकम को उसी कॉलम में मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे जो डेबिट साइड की वैल्यूज़ थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड वैल्यूज़, सो दैट्स वाई हमने नेट इनकम को डेबिट साइड पे मेंशन किया है, ताकि डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों बैलेंस हो जाएं, इसलिए हमने नेट इनकम को इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस शीट, जो हमारे पास फाइनल कॉलम है 10 कॉलम वर्कशीट का, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कैश को डेबिट साइड पे, बिकॉज यहाँ पे कैश मेंशन है डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में। देन वी हैव अकाउंट रिसीवेबल ऑन डेबिट साइड, तो यहाँ पे भी हमने डेबिट साइड पे मेंशन कर लिया है। देन वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आप देख सकते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो आपके पास आंसर था 130 रुपीज़ थी, इसलिए यहाँ पे भी आपने बैलेंस शीट में भी 130 रुपीज़ डेबिट साइड पे मेंशन करने हैं। देन इक्विपमेंट है 750 रुपीज़ डेबिट साइड पे मेंशन है ट्रायल बैलेंस में, दैट्स वाई यहाँ पे भी आपने 750 डेबिट साइड पे मेंशन करना है। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो फाइनल आंसर आया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दैट वाज 350 रुपीज़, दैट्स वाई आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है 350 रुपीज़, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी ये क्रेडिट साइड पे ही गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, दैट्स वाई इसको हमने इस कॉलम में इंक्लूड किया है बैलेंस शीट के कॉलम में। देन वी हैव अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड पे 1400। देन वी हैव कैपिटल 2870, इट्स ऑल्सो बैलेंस शीट आइटम और क्रेडिट साइड पे हमने मेंशन करना है क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट साइड पे मेंशन है। आफ्टर दैट वी हैव एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री 2050, इसको आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना है क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड पे मेंशन है। देन वी हैव सैलरीज पेएबल क्रेडिट साइड पे है आपके पास बैलेंस शीट में, क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी ये क्रेडिट साइड पे गिवन है। और फाइनली आपके पास है नेट इनकम। अब नेट इनकम को यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया है, नॉट ऑन डेबिट साइड, क्योंकि जो नेट इनकम है वो बेसिकली इट बिलोंग्स टू योर कैपिटल। कैपिटल आपका ये जो 2870 है ये क्रेडिट साइड पे मेंशन है, ओनर इक्विटी कंसिडर होती है ये चीज़ 2870। तो नेट इनकम भी तो हम ओनर इक्विटी के साथ मेंशन करते हैं, दैट्स वाई नेट इनकम जो आपके पास वैल्यू है 1170 ये आपने क्रेडिट साइड पे मेंशन करनी होगी, उस साइड पे जिस साइड पे ऑलरेडी कैपिटल भी गिवन है, मेंशनड है। अब आप डेबिट साइड की वैल्यू को भी एडअप करेंगे और क्रेडिट साइड्स की वैल्यू को भी एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर इक्वल आएगा, विच इज़ 5860। दोनों साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए। सो बेसिकली दिस इज़ 10 कॉलम वर्कशीट मेजरली based on 5 columns in which we have put different values and we have taken help of trial balance which was also given to us in question. उसके बाद बारी आती है क्लोजिंग एंट्रीज़ की, विच इज़ ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको कहा गया है दैट यू हैव टू पास क्लोजिंग एंट्रीज एज वेल, यू हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्लोजिंग एंट्रीज़ में जैसे मैंने आपको बताया है दैट वी हैव टू क्लोज द नॉमिनल अकाउंट्स विच आर टेम्पररी अकाउंट्स एंड विच आर बेसिकली इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जितने भी हमारे पास डेबिट अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना होगा,
डेबिट बैलेंसेस जितने भी होंगे उनको हमने क्लोज करना होगा, जो कि बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब हमने एक्सपेंस से जो सारा बैलेंस है ट्रांसफ़र करना है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में, तो हमारे पास ये जितने भी एक्सपेंस वाले आइटम्स हैं या जो डेबिट आइटम्स हैं इनको हमने क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करेंगे तभी इनका बैलेंस ट्रांसफ़र होगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। परचेजेस आपके पास डेबिट आइटम है, ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट आइटम है, सेल्स रिटर्न्स, salaries expense, supplies expense, depreciation expense, rent expense, advertisement expense, delivery expense and insurance expense. All these are income statement items and all these are debit items. तो इन तमाम डेबिट आइटम्स को हम जब क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे तो इट मीन्स कि हम इनका जितना भी बैलेंस था, इनकी जितनी भी वैल्यूज़ थी, उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। तो आपके पास ये जितने भी डेबिट आइटम्स थे जो कि इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, जब आप इन तमाम आइटम्स को एडअप करें तो आपके पास अमाउंट आती है 15,380। मीन्स 15,380 का ये जो तमाम बैलेंस है ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। दैट्स वाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया है और बाकी ये जो तमाम डेबिट आइटम्स थे इनको आपने क्रेडिट कर दिया है ताकि आप बैलेंस को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें। नरेशन आप देख सकते हैं, ऑल द डेबिट बैलेंसेज ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। मीन्स जितने भी डेबिट बैलेंसेस थे इनकम स्टेटमेंट के उनको हमने क्लोज कर लिया और उनका जितना भी बैलेंस था वो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। देन जो हमारे पास सेकंड क्लोजिंग एंट्री हमने करनी है, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं इनकम स्टेटमेंट के उनको क्लोज करना है। तो क्रेडिट बैलेंसेस को आप क्लोज इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना होगा, विच मीन्स कि ये जो अमाउंट्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। तो हमारे पास सेल्स है क्रेडिट आइटम, परचेज रिटर्न्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दीज थ्री आर बेसिकली क्रेडिट आइटम्स। तो इनको हमने डेबिट साइड पे मेंशन किया है विच शोज़ दैट ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। इन तीनों के एडअप करने से हमारे पास जो अमाउंट आती है दैट इज़ 16,550, विच शोज़ कि ये जो तीनों बैलेंसेस हैं ये अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। दैट्स वाई इन तीनों क्रेडिट आइटम्स को हमने डेबिट साइड पे शो किया है, बिकॉज these three items are showing a decrease. These three items are recorded on the debit side, which shows that the balance of these three items is being transferred to expense and revenue summary account. So narration में हमने लिखना है all the credit balances of nominal accounts are closed to the expense and revenue summary account. थर्ड हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेट इनकम है उसको हमने ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल अकाउंट में। तो जब नेट इनकम को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज़ आ जाएगा। तो जब कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज़ आता है, सो वी यूजुअली राइट इट ऑन दी क्रेडिट साइड। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल अकाउंट में। दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया है और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया है क्योंकि समरी अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल अकाउंट में। नरेशन में आप लिखेंगे नेट इनकम इज़ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। ये जो क्लोजिंग एंट्रीज़ हमने पास की हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम आइटम्स जो हैं इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं। इसमें से आपको कोई भी बैलेंस शीट आइटम नज़र नहीं आएगा। बेसिकली अगर आप इस क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बेसिकली एंडिंग इन्वेंट्री है जो कि इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट है। जब हम CGS कैलकुलेट करते हैं तो CGS में आपने देखा होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। दैट्स वाई यहाँ पे हमने एंडिंग इन्वेंट्री को या क्लोजिंग इन्वेंट्री को इंक्लूड किया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारे पास फाइनल स्टेप है इस अकाउंटिंग साइकिल का। मींस पोस्ट क्लोजिंग जो आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास कर ली हैं उसके बाद एक फाइनल ट्रायल बैलेंस आपने बनानी होती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। मेंशन आप कर सकते हैं मंथ या ईयर भी जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। अब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमने जितने भी आइटम्स लिए हुए हैं आप देख सकते हैं दीज ऑल आर बैलेंस शीट आइटम्स। तमाम बैलेंस शीट आइटम्स आपने मेंशन करना होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, और जो आइटम्स डेबिट साइड के होते हैं उन्हें आप डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं और जो आइटम्स क्रेडिट साइड के होते हैं उन्हें आप क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन या डिफ़िकल्टी हो कि डेबिट कौन से हैं आइटम्स और क्रेडिट साइड वाले कौन से हैं, तो इस केस में आप
वर्कशीट की हेल्प ले सकते हैं। आप वर्कशीट में देख सकते हैं कि कौन से आइटम्स डेबिट हैं और कौन से आइटम्स क्रेडिट हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में कैश डेबिट आइटम है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट आइटम है, इसके अलावा प्रीपेड डेबिट आइटम है, इक्विपमेंट डेबिट आइटम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट आइटम है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट आइटम है, कैपिटल क्रेडिट आइटम है हमारे पास, एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास डेबिट आइटम है, सैलरीज पेबल आपके पास क्रेडिट आइटम है और नेट इनकम आपके पास क्रेडिट आइटम है। तो डेबिट क्रेडिट का अंदाज़ा हम यहाँ से भी कर सकते हैं व्हेन एवर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो अब हमने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जस्ट यहाँ पे सिंपली मेंशन करना है कैश इज़ ऑन डेबिट साइड, अकाउंट रिसीवेबल्स इज़ ऑन डेबिट साइड, merchandise inventory means ending inventory is on debit side, prepaid insurance and equipments, these both are on debit side. Then accumulated depreciation, accounts payable and salaries payable and capital, these 4 items are on क्रेडिट साइड और आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल कर लेना है। यहाँ पे आपने नेट इनकम को मेंशन नहीं करना क्योंकि नेट इनकम का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री में हो चुका है, दैट द नेट इनकम इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स वाई नेट इनकम को पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में दोबारा से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने डेबिट क्रेडिट आइटम्स को उठाना है एक्सेप्ट इनकम, नेट इनकम, और उनको आपने टोटल कर लेना है। तो जो आपके पास डेबिट साइड की वैल्यूज़ हैं और जो क्रेडिट साइड की वैल्यूज़ हैं बोथ should be equal, which shows you the accuracy of your trial balance, which is post closing trial balance. This was easy topic, that was not that much difficult. What you have to do is that you will do practice 1 or 2 times and this concept would be clear to all of you. Thank you class.